Okay, so yeah. Okay, so greetings everyone, and I welcome you all to the session two of Machine Learning Study Jams here at HackSlash. So I am Abdul Subhan, and I'll be taking this session for you guys. So I hope you guys must have attended first session that was taken by the Vyansh, in which basics of Python were covered. So today's session is all about the three most important libraries when it comes to dealing with data. Before we get into machine learning, we are supposed to deal with lots and lots of data. So I think I mentioned in the orientation sessions as well that the key to machine learning is data. So अगर आपके पास data है of any sort, you can make it useful or get some information, valuable insights out of it. It's definitely a plus point, and that's where machine learning comes in. It's all after you tend to deal with data. So हम लोग तीन libraries के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So सबसे पहले हम लोग numpy के बारे में डिस्कस करेंगे. Then we will be heading on towards pandas, and then also we will be discussing about matplotlib. So start करते हैं numpy से. So let me just give you a brief intro about all the three libraries. So NumPy is basically numerical Python, and it is used for handling data, which is stored in terms of an array. Okay, I will get back to that in a while. And talking about pandas, it's another library that is used, which is usually, it provides you lots and lots of data structures. We will be dealing with two data structures, series and data frame. So, yeah, and all the operations, all the data analysis that you do, it's all around pandas. That library really helps. Talking about the third library, which is matplotlib, I discussed in the session as well, in the orientation session, that it's used for data visualization. So, when you have data, you really have to visualize data. You have to get in some insights, and that is when, you can say matplotlib comes in handy. So, talking about, we'll begin with NumPy first of all. So, numerical Python. So, as the name suggests, is it's used for जो भी mathematical computations हमको करनी होंगी. We will be using NumPy for that. अब Python में दो चीजें हो गई, एक तो list and एक array. So, you guys must have studied arrays in C, right? तो हम लोग पहले list की बात करेंगे and then we will be talking about arrays. तो जो NumPy जो deal करता है, deals with arrays. अब arrays and lists ये क्या है? So basically दोनों एक data structure है, ठीक है? List में क्या होता है? In a list you can have data of different types, ठीक है? Python में आप जो lists होती है उनमें you can store a string, a boolean value, a number all together. Array जब आप use कर रहे हो, you will have to use the values of same data. That is what is an array basically, right? So सबसे पहले हम लोग let's do the basic things, and I guess you guys must be aware of this entire interface. This is Google Colab. अगर आप लोगों ने सेशन वन नहीं देखा है, वुड recommend you guys to go watch that session as well, because देखो जो ये Google Colab है, we will be using this throughout जो हम लोग के 4 sessions रहने वाला है. So this is the interface. You code over here, you have you have your files over here. हम लोग files से भी deal करना सीखेंगे in a while. So first of all, let me just do one thing. uh, before anything, before creating a list and array, काम करते हैं, numpy को import कर लेते हैं. So numpy is basically a library, right? So this is how you import numpy. So basically this is np, right? You can put in any variable name. Variable name का क्या होता है? आप you can put like anything, कुछ भी आप नाम रख सकते हो variables का. That won't matter. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग numpy जो library उसको import कर लेंगे and we will store that library with the name np. तो हम लोग को बार बार numpy call नहीं करना पड़ेगा. We will just be calling np. So I talked about lists, right? तो एक काम करते हैं, पहले एक list बना लेते हैं. I'll just create my list, and this is how you create a list in Python. Uh, the elements are stored within the square brackets. So ये एक हमारी list हो गई, ठीक है? तो now I also talked about arrays and I talked about numpy. So numpy क्या करता है, list को उसको चाहिए कि वो एक array हो. So what we're gonna do is हम लोग सबसे पहले एक array बनाएंगे, एक variable बनाएंगे, and I'm gonna use this np.array function over this my list. तो हम लोग ने क्या किया? We've taken this list and we've passed it into this function of numpy, which is numpy.array, np.array. तो अब ये क्या करेगा? ये जो list थी, it has created an array of this list and stored in this variable array, arr basically. तो
एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट चेक। सो वी हैव दिस फंक्शन इन पाइथन जस्ट टाइप ऑफ एंड द वेरिएबल नेम। तो ये बता देगा कि इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर्ड है वो किस टाइप का है। इट्स एनडी एरे, ठीक है, numpy डॉट एनडी एरे। मतलब ये बेसिकली एक numpy का n डिमेंशनल एरे है। ओके, सो दिस इज एन एरे, ये हम सबको पता चल गया है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज जस्ट zoom in a bit for you guys, ठीक है। अब एक काम करते हैं, we have this array right, एक काम करते हैं, एक और array बना लेते हैं। So I'll just tweak these elements a bit, थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं इन elements को, and we will again create this array। तो मैंने दोबारा रन कर दिया, so we have another array with these updated values, just taking an example। तो एक काम करते हैं, अब इस array को हमको sort करना है। This is not in a sorted order जो हम लोगों ने array print किया, so let me just print the array, ठीक है। So when you're running a cell, you can press shift to print it। तो ये हमारा array है, which is of this sort, and now I want to sort this array, ठीक है। numpy में again एक function होता है dot sort करके। So what I'm gonna do is I'm gonna sort this array, variable name dot sort, and I'm gonna function call किया, and this function, this array is now sorted। तो हम लोग अब array print करेंगे। So you have this array sorted 3 4 5 11 24। तो हम लोग का जो array है वो sort हो चुका है अब। तो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट मल्टी नेस्टेड एरे। अब मल्टी नेस्टेड एरे क्या होगा, आप एक एरे बनाओगे और उसमें ऑलरेडी बहुत सारे एरेज रहेंगे, ठीक है। सो वी जस्ट प्लेइंग अराउंड विद नंपाई, नथिंग टू गेट स्केयर्ड ऑफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट क्रिएट, पहले 3 लिस्ट बना लेते हैं। रैंडम नंबर्स रख सकते हैं कुछ भी, गाइस कैन प्ले अराउंड विद दिस। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक एरे बना देंगे। लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इन दीज वैल्यूज, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 लिस्ट बना लिया पहले तो, ठीक है ना। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना क्रिएट एन एरे जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो भी एक एरे रहेंगे। सो लेट मी जस्ट टाइप इन दैट कोड। हम लोग एक और एरे बनाते हैं, क्रिएट एन एरे ऑफ एरे, एक वेरिएबल नाम मैंने रख लिया है। सो अगेन वी गोना कॉल दी np डॉट एरे फंक्शन। अब हम np डॉट एरे फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें हम लोग तीनों लिस्ट्स को पास कर देंगे एज एलिमेंट्स। तो my underscore list one, my underscore list two, and my underscore list three। मैंने क्या किया, एक एरे बना दिया है जिसमें जो भी 3 एलिमेंट्स है वो भी एक एरे है। सो मैं I'm gonna print this array। आप लोग को तब पता चलेगा कि हाउ दिस इज क्रिएटेड। सो यू कैन सी जो एरे है उसमें यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, एंड दिस इज द थर्ड रो। तो आप देख सकते हैं व्हाट हैज हैपेंड इज इट हैज क्रिएटेड एन एरे। अब इसमें जो भी 3 एलिमेंट्स हैं वो भी तीनों एक एरे हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ रो बेसिकली, मतलब एक तरीके से इसको कह सकते हो, जो भी 3 एलिमेंट्स हैं एरे में दोज आर लिस्ट्स। तो बेसिकली क्या हुआ है, इट्स अ मल्टी नेस्टेड लिस्ट इसको बोलते हैं, कि एरे के अंदर एरेज हैं हमारे। सो दिस इज हाउ यू डू दैट। अब एक काम करते हैं, लेट्स चेक द शेप ऑफ दिस एरे, काम करते हैं, ठीक है। सो एरे डॉट शेप एक फंक्शन होता है वेयर यू कैन चेक द शेप ऑफ दिस एरे। तो इसमें आपको बता देगा कि कितने जो है इसमें एलिमेंट्स हैं। सो अब यू कैन सी दैट देयर आर 5 एलिमेंट्स राइट इन, ओके वेट, अच्छा मैंने ये वाला print किया। सो दिस इज दैट वन डायमेंशनल एरे जो हम लोगों ने बनाया था। हाँ, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। टू चेक दिस वन, हम करते हैं। सो दिस इज आवर एरे, बेसिकली जो सेकंड एरे हम लोगों ने बनाया था उसमें 3 रोज हैं, एज यू कैन सी देयर आर 3 रोज। दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड रो, और इसमें 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 और 4 एंड 5। तो हम लोगों ने एक एरे ऑफ एन एरे बना दिया विच इज बेसिकली लाइक अ मैट्रिक्स, यू कैन से 3 रोज एंड 5 कॉलम्स का। दिस इज हाउ यू डू दैट। अब एक काम करते हैं, आई होप यू गाइस मस्ट बी अवेयर कि एरेज में जो होते हैं वो इंडेक्सेस पे एलिमेंट स्टोर होते हैं, जो उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है एलिमेंट्स की एरे में, दोज आर कॉल्ड इंडेक्सेस। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें भी as C इसमें भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। So if I'm trying to access the, okay, let me just print this array first of all। एक जो वन डायमेंशनल array हम लोगों ने पहले बनाया था उसको एक बार कॉल करते हैं। So you can see this is the array that we have। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू गेट दिस फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है। अब दिस फिफ्थ एलिमेंट जो नंबर है 5, इट्स स्टोर्ड ऑन द सेकंड इंडेक्स। हम लोग को चाहिए कि हम लोग सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट है 5 उसको एक्सेस कर पाए। सो
दिस इज द जीरोथ इंडेक्स, दिस वन, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग array of अगर 2 लिखेंगे, सो दिस विल गिव यू 5। सो बेसिकली क्या हुआ, हम लोगों ने एलिमेंट्स को एक्सेस करने की एक तरीका है ये, कि यू नो इफ यू राइट array of 2, what will do is सेकंड इंडेक्स पे जाएगा ये 0, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड इंडेक्स पे जाएगा 5 एंड इसको प्रिंट कर देगा। दिस इज हाउ यू एक्सेस एलिमेंट्स इन एन array। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट्स लर्न वन मोर। हम लोगों ने एक वन मल्टी डायमेंशनल array बनाया था, राइट? दिस वन, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो अब लोग इसमें एक काम करते हैं कि हम लोग इसमें सीखेंगे इंडेक्सिंग, सॉरी स्लाइसिंग। अब हमको फॉर एग्जांपल, आई फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस। ओके, अब क्या होता है, नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एक्सेस, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल फर्स्ट एंड देन आई मेक इट, आई कंप्लीट इट, मैट रॉन्ग है, दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, या ओके, या सो मैं गलत आ ले रहा था। या एक काम करते हैं, या सो दिस माइट सीम अ बिट कॉम्प्लेक्स, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कॉमा है, राइट? सो बेसिकली हमको अब एलिमेंट्स एक्सेस करना है। सो यू कैन सी क्या प्रिंट हुआ है, 6 4 7 एंड 5, दिस दीज 4 एलिमेंट्स हैव बीन प्रिंटेड। तो जो कॉमा के लेफ्ट साइड रहता है, दैट इज यूज्ड फॉर रोज, ठीक है, एंड दिस इज यूज्ड फॉर कॉलम्स, जो कॉमा के राइट साइड है। और ये जो कोलन है, ये जो सेमी कोलन है, इसमें कोलन बेसिकली, हाँ। तो व्हाट इज दिस कोलन यूज्ड फॉर? दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, दिस इज द एंडिंग इंडेक्स, जो कोलन के इधर रहेगा। सो यू सी दिस इज रो, ये वाला पोर्शन पूरा, दिस वन, आई जस्ट हाईलाइट इट, वन सेकेंड, दिस पोर्शन इज फॉर रोज एंड दिस पोर्शन इज फॉर कॉलम्स। तो अगर हम लोग को जो फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, सो हम लोग पहले रोज की बात करते हैं। हम लोग को चाहिए कि फर्स्ट रो को कंसिडर करें, एंड इसमें हम लोगों ने एंडिंग एंडिंग इंडेक्स डिफाइन नहीं किया है। तो एंडिंग इंडेक्स डिफाइन नहीं किया मतलब वो हम लोग को पूरा देगा फर्स्ट से लेके एंड तक, रोज। सो बेसिकली इट इज कंसिडरिंग दी टू रोज। अब हम आते हैं कॉलम की तरफ। स्टार्टिंग इंडेक्स हम लोगों ने कुछ डिफाइन नहीं किया, हम मतलब हमको पूरा चाहिए स्टार्ट से लेके एंड तक। और दिस इज द सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स याद रखना, हमेशा जब भी एक एंडिंग इंडेक्स आप लेते हो, इट इज नॉट प्रिंटेड, उससे पहले जो एक इंडेक्स रहता है वहां तक ही ये प्रिंट होता है। सो जो भी हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स था, हम लोगों ने उसको डिफाइन नहीं किया। तो बेसिकली जो भी हमारा, यू कैन से, ये कॉलम्स हैं, ये कंसिडर हो जाएंगे वहां से लेके यहाँ तक, सॉरी कॉलम्स, राइट? सो यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है, इस पे वी कैन प्ले अराउंड। सो एक काम करते हैं, इस बार फर्स्ट से सेकंड रो तक जाते हैं एंड अगेन फर्स्ट से सेकंड कॉलम पे जाते हैं। तो एक 7, बस एक 7 प्रिंट हुआ है। व्हाई? द फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रो इज दिस वन। तो हम लोग ये दो रोज कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, एंड दो पे एंड हो जाए, तो जो हमारा एंडिंग इंडेक्स है इज -1, राइट? तो हम लोग का ये वाला इंडेक्स कंसिडर ही नहीं होगा, ओनली दिस इज कंसिडर्ड, ठीक है, बिकॉज दिस इज द एंडिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स हमारा 2 है। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉलम्स, अगेन फर्स्ट कॉलम से लेके सेकंड कॉलम तक की बात हो रही है। तो दिस इज द जीरोथ कॉलम, 1 6 4, दिस इज द जीरोथ कॉलम, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो ये कंसिडर हो जाएगा। एंड एंडिंग इंडेक्स इज 2, क्या ये कंसिडर होगा? नहीं, बिकॉज एंडिंग इंडेक्स हमेशा -1 तक जाता है, तो सिर्फ ये कंसिडर होगा। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन? हम लोग को ये मिला एंड हम लोग को ये 3 मिले, इंटरसेक्शन इज 7, तो हम लोग का 7 प्रिंट हो जाएगा। बाकी यू गाइस कैन प्ले अराउंड विद दिस। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्लाइसिंग आप लोग को बहुत हेल्प करेगी एट सम पॉइंट। सो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। तो सो टेक अ मोमेंट एंड गेस करो, गेस मत करो, जस्ट इमेजिन कि क्या हो सकता है आंसर। अब देखो, हम लोगों ने इसमें स्टार्टिंग, दिस इज फॉर कॉलम्स, राइट? ये पोर्शन इतना। तो देखो, हम लोगों ने स्टार्ट इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स रो के लिए हम लोगों ने जो है वो नहीं किया, डिफाइन नहीं किया। सो
मतलब सारी रोज को कंसिडर करेगा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। अब कॉलम की बात करी जाए, कॉलम सिर्फ थर्ड कॉलम से इसको स्टार्ट चाहिए, मतलब 0 1 2 3। तो बेसिकली ये कॉलम और ये कॉलम को ये कंसिडर कर रहा है, दीज टू कॉलम जो एंड के दो कॉलम्स हैं। और एंडिंग इंडेक्स हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है, सो बेसिकली यहाँ से लेके ये पूरा ले लेगा। सो तो हम लोग का, बिकॉज हम लोग सारे रोज कंसिडर कर रहे हैं एंड सिर्फ ये दो कॉलम्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ये के सारे जो इंटरसेक्शन बन के आ रहे हैं वो प्रिंट हो जाएगा। इसमें I cannot explain you much about this. Let's not waste much time on this. This is all about experimenting. आप लोग भी, you guys can, sit down and play around with indexes. This is fun exercise. You guys can try this out. ये कर लेना. Okay, let's go back to our one dimensional array जो हम लोगों ने create किया था. ये था हम लोग का first जो array हम लोगों ने create किया था. तो एक काम करते हैं. Just imagine I want ये दो values को मैं change करके कुछ भी कर दूँ. ठीक है. So what I'm gonna do, हम लोगों ने इंडेक्सिंग सीखी, राइट। इन अ वन डायमेंशनल एरे इसमें बस ऐसे भी करोगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज यू गाइज हैव टू कंसिडर ओनली रो, इसमें सिर्फ एक ही रो होती है। अब हमको क्या चाहिए कि जो भी हम लोग का थर्ड इंडेक्स है उससे लेके एंड तक, मतलब ये दो एलिमेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग 5 भी लिख सकते हो। तो इसको अगर हम लोग 100 असाइन कर दें, तो बेसिकली क्या हुआ, 5 - 1 4, मतलब ये इंडेक्स 4 तक जाएगा। these two will be कन्वर्टेड टू 100 बिकॉज 3:5 मतलब थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होगा यहाँ से एंड जाएगा फिफ्थ इंडेक्स के जस्ट पहले, फोर्थ इंडेक्स ये 24। सो ये दो एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 100। इफ आई जस्ट प्रिंट दिस एरे नाउ, यू कैन सी जो दो एलिमेंट्स थे वो 100 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, यू गाइस मस्ट बी अवेयर ऑफ बूलियन वैल्यूज, राइट। बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं, दे आर ईदर ट्रू और दे आर फॉल्स। तो अगर आप लोग कंसिडर करो कि हम लोग के पास एक आरे है, ये वाला, हम लोग को पता करना है कि कौन सी वैल्यूज जो है 100 से कम है। तो व्हाट आई एम गोना डू, हम लोग आरे लिखेंगे एंड लेस देन 100। नाउ लेट्स सी व्हाट प्रिंट्स। ये चीजें प्रिंट होंगी। तो बेसिकली ये एक चेक है, और ये आपको ऐसे प्रिंट करके देगा कि कौन कौन सी वैल्यूज ट्रू है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट ऐसा है वेयर दिस कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। क्या ये एलिमेंट 100 से कम है, यस ट्रू, दिस वन यस ट्रू, दिस वन यस ट्रू, एंड ये दो एलिमेंट जो 100 की इक्वल है, ऑब्वियसली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अब ये जो है हम लोग का इसे ट्रू फॉल्स के वैल्यूज में दे देते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप लोग को चेक करना है कि ये जो 100 से कम वैल्यूज हैं वो कौन सी है। तो हम लोगों ने सीखा था कि एरे के एलिमेंट्स को हम लोग विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्सेस करते हैं, राइट। तो अगर हम लोग यही कंडीशन को उठा के इसमें रख देंगे, तो ये बेसिकली हमको क्या देगा, जहां जहां ये कंडीशन ट्रू है वो एलिमेंट्स, बेसिकली जहां जो जो इंडेक्सेस पे ये ट्रू हो रहा है ना ये कंडीशन, वो इंडेक्सेस इस स्क्वायर ब्रैकेट को रिटर्न कर देगा एंड फिर एरे विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग उसको एक्सेस कर लेंगे। तो यस यू कैन सी कि ये तीन वैल्यूज जो थी हमारी वो थी 100 से कम। सो अगर इफ यू वांट टू प्ले अराउंड विद दिस, मोर देन 4 कर लेते हैं, तो 500 एंड 100 ये तीन एलिमेंट्स हम लोग के जो 4 से ग्रेटर है वो प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो अब एक और फंक्शन के बारे में बात करते हैं विच इज np डॉट ए रेंज। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अब कौन सा फंक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं, np डॉट ए रेंज। ठीक है, तो हम लोग अब np डॉट ए रेंज के बारे में पढ़ते हैं। सो इफ आई जस्ट डू दिस np डॉट ए रेंज 0, 10, आई बी टेकिंग एग्जाम्पल्स ताकि आप लोग को समझ आए। अब ए रेंज फंक्शन क्या करता है, इट टेक्स दी दिस दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू एंड यहाँ से 0 से लेके 10 - 1 तक सारे को एक एरे में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। एक वेरिएबल में हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं पहले, ए। तो बेसिकली क्या हुआ, इसने एक एरे बना दिया। np डॉट ए रेंज फंक्शन डज दिस कि हम लोग एक एरे बना देते हैं जिसमें 0 से लेके या जो भी आप इंडेक्स यहाँ पे, जो भी आप नंबर यहाँ पे 5 से 5 कॉमेंट में, एंड इफ आई प्रिंट इट, तो बेसिकली 5 6 7 8 एंड 9 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट नहीं होगा। अगर आपको 10 चाहिए सो यू कैन मेक दिस 11 होनी चाहिए। इंडेक्स -1 नंबर -1 तक जाता है ये फंक्शन भी। इफ आई प्रिंट ए अगेन, तो देखो 5 से 10 हम लोग का आ जाएगा। ये फंक्शन तब हेल्प करता है जब आप लोग को मैनुअली ऐसे वैल्यूज नहीं पुट करना है।
अब एक काम करते हैं, I'll create two arrays, ठीक है, using this function. Let me just create two arrays. Array 1 is equals to np dot arange 0 comma 10. I'm going to print, I'm going to create another array which is np dot arange 0 comma 10. So हम लोग ने दो arrays print कर दिए. If I just print array 1 and if I print array 2, तो ये हम लोग के दोनों arrays आ चुके हैं. अब एक काम करते हैं, अब हम लोग को चाहिए कि ये जो एक फ्लैट array है, हम चाहते हैं कि इसमें बेसिकली हम चाहते हैं कि इसमें दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सच अ फॉर्म कि इसमें 5 रोज हो जाएं और 2 कॉलम्स हो जाएं. तो एक काम करते हैं, इधर ही हम लोग एक डॉट रीशेप फंक्शन होता है एंड 5,2 यहाँ पे इन दिस आर्ग्यूमेंट रीशेप के ये दो आर्ग्यूमेंट्स में हम पास करते हैं कि हम लोग को किस फॉर्म में इस एरे को कन्वर्ट करना है. ठीक है, आप लोग इसको यहाँ भी कर सकते हो एंड आप लोग इसको यूज यहाँ भी कर सकते हो. सो इफ आई रीशेपिंग दिस एरे इनटू 5,2 मतलब इसमें ऐसा हो जाएगा कि 5 रोज एंड 2 कॉलम्स बन जाएंगे. सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस सेल एंड इफ आई प्रिंट दिस वन नाउ, तो मेरा एरे वन कुछ ऐसे हो गया कि इसमें अब 5 रोज आ गई हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, एंड 2 कॉलम्स आ गए, एक ये और एक ये. हम लोग सिमिलरली काम करते हैं, इसको भी रीशेप कर देते हैं 5,2 में. तो हम लोग के दोनों एरेज अब 5 रोज और 2 कॉलम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं. अब एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू वन थिंग. हमको लेट्स एक्सप्लोर दी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. ठीक है, तो अगर मैं दोनों एरेस को मल्टीप्लाई करता हूँ, इफ आई प्लेस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस टू एरेस, तो क्या होता है, यू गाइस कैन सी क्या हुआ. हर एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट 0 got multiplied with 0 and gave you 0. 1 got multiplied with 1, the second array, and gave you this array. 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ and it gave you 4. 9 जो था इस 9 से मल्टीप्लाई हुआ. बेसिकली करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस जो इस एलिमेंट पे जो इस इंडेक्स पे रखा है, वो इस एलिमेंट के इस एरे के इस इंडेक्स से मल्टीप्लाई, एंड दिस विल बी द आंसर कि आप लोग डायरेक्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. इफ आई स्टोर दिस इन सम वेरिएबल, इफ आई स्टोर दिस इन सम वेरिएबल, तो ये सी क्या होगा. एक अगर हम सी का टाइप देखें, व्हाट इज सी. सी इज बेसिकली एन एमडी एरे. हम लोग अगर सी का शेप देखें, सो यस इट विल हैव 5 रोज एंड 2 कॉलम्स. अब एक काम करते हैं, वी विल कम अक्रॉस सम फंक्शंस. अब एक काम करते हैं, ठीक है, देयर आर अ फ्यू फंक्शंस दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. नाउ आई हैव दिस सी एरे. ठीक है, एक काम करते हैं, सिंपल लेते हैं. तो हम लोगों ने फर्स्ट एरे बनाया था ARR नाम से, दिस वन. अब मेरे को जानना है कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. हाउ मच इज इट. 205, 9 एंड 212. तो अगर मेरे को चाहिए, सो इफ आई एम राइटिंग ARR डॉट सम फंक्शन, इट रिटर्न्स यू द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दिस एरे. सो यस दैट्स 212. मेरे को जानना है कि इस एरे में व्हाट इज द मिनिमम एलिमेंट. आई एम राइटिंग ARR डॉट min, it will return you the minimum element in this array, which is 3. Similarly, अगर हम dot max function का यूज करते हैं, it will return you the maximum value. अब we have learnt about minimum and maximum. There is another function which is ARR dot argmax. What is argmax? I'll just print this and I'll see what you guys can infer from this. तो argmax function क्या करता है? We've learnt about max function. तो max function क्या करता है? Maximum element को return करता है, which is 100, यहाँ पे और यहाँ पे. argmax फंक्शन जो होता है, इट रिटर्न्स द इंडेक्स जहां पे ये मैक्सिमम एलिमेंट पहली बार आया. क्या करता है argmax फंक्शन? मैक्सिमम वैल्यू एरे में जहां भी है, वो इंडेक्स वो रिटर्न करेगा द फर्स्ट टाइम इट अकर्स. अगर हम argmin प्रिंट करें, सो 0 प्रिंट होना चाहिए, राइट, बिकॉज जो मिनिमम एलिमेंट है इस एरे में वो 0th इंडेक्स पे है. आई एम राइटिंग arr.argmin, इट इज 0 क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू हमारे इस एरे में, इट इज स्टोर्ड इन दी 0th इंडेक्स ऑफ दिस. ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट्स लर्न अबाउट दिस फंक्शन. अब इसमें आप प्ले अराउंड कर सकते हो. डॉट मीन भी फंक्शन इसमें होता है, so इसमें जो भी मीन है वो आ जाएगा. दैट इज टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब हम इसमें अगर स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना चाहें, वो भी आ जाएगा. ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने एरे ऑफ एरे बनाया था ना,
दिस वन। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, मीन निकालते हैं, बट एक्सेस इक्वल्स टू जीरो। एक्सेस इक्वल्स टू जीरो मतलब रोज, एंड इफ आई टेक एक्सेस इक्वल्स टू वन, ये कॉलम वाइज मीन निकाल देगा। ओके, वेट, आई थिंक दिस डजंट वर्क दिस वे। ठीक है, एनीवेज, जो एक्सेस इक्वल्स टू जीरो के अलोंग जो भी मीन था वो आ गया। ओके वेट, मैं पुराना एरे एक्सेस कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस एरे, जो सेकंड एरे हम लोगों ने बनाया था। दिस इज व्हाट हैपेंस, वेरिएबल नेम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एक्सेस इक्वल्स टू जीरो, ये हर एक रो का आप लोग को मीन कैलकुलेट करके दे देगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डॉट मीन एक्सेस इक्वल्स टू वन, कॉलम वाइज। ठीक है, या ऑलराइट। सो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे तीन जो हम लोग के पास रोज हैं अलोंग दिस एक्सेस। एक्सेस इक्वल्स टू वन मतलब क्या होता है, हर एक कॉलम उठाओ, एक्सेस इक्वल टू वन कॉलम होता है, बट जो कॉलम के वैल्यूज हैं दोज आर स्टोर्ड इन अ रो ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस इक्वल्स टू वन मतलब हम लोग ये एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो जो ये रो है इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसका मीन यहाँ पे स्टोर होगा। सिमिलरली एक्सेस इक्वल्स टू जीरो में क्या होगा, अलोंग दिस एक्सेस हम लोग मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, बट हम लोग पर कॉलम चाहिए वो चीज। सो ये ऐसे वर्क करता है, एक्सेस इक्वल्स टू जीरो एंड एक्सेस इक्वल्स टू वन। अब एक काम करते हैं, हम लोग ने you guys must have heard about transpose, है ना, इसको ट्रांसपोज करते हैं। सो अगर हम लोग चेक करें, ये एरे डॉट ARR डॉट शेप, अगर हम लोग चेक करें तो इस एरे का शेप क्या था, बस 3,5, 3 rows and 5 columns। अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, इफ आई एम राइटिंग ARR डॉट ट्रांसपोज, तो क्या होगा, ये जो है ये ट्रांसपोज हो गया। बेसिकली रोज कॉलम्स बन गए, कॉलम्स रो बन गए। यू गाइस मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस इन मैट्रिसेस। सो अगर मैं इसको अलग जगह स्टोर कर लूँ विद वेरिएबल नेम डी, ठीक है, and we dot shape लूँ, so you can see it has 5 rows and 3 columns which is exact transpose of this one। अब एक फंक्शन है np dot dot करके, so I'll just write this down, this is a very important function। फिर डॉट फंक्शन क्या होता है, you guys must have studied about डॉट प्रोडक्ट। तो बेसिकली यही है, I'm taking two arrays, मैं दो arrays ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ दो arrays क्रिएट कर लिए हैं, ए एंड बी। अब मुझे क्या चाहिए कि अ, एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, सिंपल नहीं रखते इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अ, ठीक है, 1 सेकेंड, एक array बना लेता हूँ पहले, then I'll get back to you guys। सो मैंने array को थोड़ा सा चेंज कर दिया। सो दिस इज हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस array। अगर मैं इसको रन कर दूँ, मैंने दो arrays बना दिए हैं, इसमें दो रोज और दो कॉलम्स हैं। दिस इज द फर्स्ट रो, सेकंड रो, एंड ये इस बी array का फर्स्ट रो एंड सेकंड रो है। तो लेट्स डू वन थिंग, काम करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, एमपी डॉट ए कॉमा बी। तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। अगर आप लोगों ने, यू गाइस कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन, एक बार काम करो, पेन एंड पेपर लो, and ये दो एरेज का काम करता हूँ मैं, ए एंड बी प्रिंट भी कर देता हूँ। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो एमपी डॉट फंक्शन क्या करता है, ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेता है। अब इसका वेरिफिकेशन यू गाइस कैन डू दैट ऑन पेन पेपर, कि ए और बी का अगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट करोगे, अगर आप ये दो मैट्रिसेस ले लो, सो इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, दिस इज व्हाट यू विल गेट। सो दिस इज व्हाट numpy इज ऑल अबाउट। कि numpy में क्या होता है, यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, बेसिकली मैथ्स है। आपको मैथ्स को पेपर पे करना है कि आपको इस पे करना है, यू गाइस कैन डू दिस। अब ये एरेज वगैरह ये सब, दिस इज ऑल व्हाट numpy इज ऑल अबाउट। देयर इज मच मोर टू एक्सप्लोर डीप इन numpy, बट जितना नीडेड है हम लोग उतना, वी स्टडिंग दैट मच। एंड एक और फंक्शन है जिसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की। सो बेसिकली एक फंक्शन आता है np डॉट रैंडम करके, np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, रैंड है, सॉरी, एन नहीं है।
थ्री कॉमा थ्री, अगर मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, सो व्हाट विल डू, रैंडम, ठीक है, थ्री क्रॉस थ्री का एक मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, एकदम रैंडम वैल्यूज जो इसके मन में आएगी वो भर देगा। सो इफ आई रन दिस अगेन, इस बार वैल्यूज डिफरेंट है, दिस इज 473 राइट, मैं दोबारा रन करूंगा and you have another value here. So this is for generating random values. This is just for, this is used somewhere, हम लोग उसके इतने डीप में नहीं जाते हैं, but this is what random dot rand function does. थ्री क्रॉस थ्री का एक array create करेगा एंड एकदम रैंडम वैल्यूज हर एक सेल पे, हर एक मतलब भी कहीं भी कुछ भी रैंडम वैल्यूज जिसके मन में आएगी ये भर देगा between 0 and 1. So this is what this random dot rand function does. And I think that is pretty much it about NumPy. तो हम लोगों ने NumPy के बारे में बहुत कुछ पढ़ा टुडे. So yeah, हम लोग ने array lists and sort function, nested arrays, उनके access करना, उनके slicing part, उनके values change करना, boolean values से deal करना, arrange function, type function, हम लोगों ने उनका matrix multiply किया. Similarly अगर आपको इसको add भी करना है, so if you run this function, तो C के जो भी respective elements है वो add हो जाएंगे. This is what happens. So 9 plus 9 is 18, ऐसा करके type function, shape function, sum, min, max, argmax, argmin, means, standard deviation, uh, axis के along mean लेना, transpose करना, dot function and the random function. So this was all about NumPy guys. अब हम लोग थोड़ा सा move on करेंगे pandas की तरफ. So this was about NumPy. You guys can again refer to this, and I'll be sharing the notebook. Don't worry about that. And you guys can explore NumPy much more in depth according to you guys. जितना आप लोग को explore करना है, you guys can do that. So that's it for NumPy. Now let's move on towards pandas. Yeah. So अब बात करते हैं pandas के बारे में. So as I had talked about data, right? So when you are working around machine learning, ना, so when you are working around machine learning, usually data एक spreadsheet. You guys must have learned about an Excel file, है ना? Excel कभी यूज किया होगा आप लोगों ने. तो जो जिस तरीके से एक्सेल में जो डेटा है वो स्टोर होता है, उसी तरीके से हम लोग का डेटा रहता है इन मशीन लर्निंग. ठीक है, दो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पांडास लाइब्रेरी हमें ऑफर करती है. वन इज सीरीज एंड द अदर इज डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम इज प्रिटी मच लाइक एन एक्सेल शीट, जो भी हम लोग के रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं. और जो सीरीज होती है, इट इज बेसिकली एक रो डेटा फ्रेम में से अगर आप निकाल लो, दैट इज अ सीरीज, वन डायमेंशनल. तो अगर हम एक काम करते हैं, सो बेसिकली पांडास क्या करता है, डेफिनेटली उसकी थोड़ा बहुत डेफिनेशन ये सब लिखे हुए हैं. बेसिकली क्या करता है, जो भी हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं टू डील विद मशीन लर्निंग, उसके डेटा जो मशीन लर्निंग में जाता है वो हमको प्रोवाइड करता है. सेकंड चीज, डेटा एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स हमको चाहिए, जो हम लोग को फंक्शंस चाहिए, वो पांडास प्रोवाइड. यहाँ पे है कि डेटा फ्रेम क्या है. सो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ. दिस इज अ डेटा फ्रेम. ठीक है, दिस इज हाउ अ डेटा फ्रेम लुक्स लाइक. इसमें रोज हो गए, कॉलम्स हो गए, ऐसे ही कुछ डेटा हम लोग के पास रहेगा. इसमें कॉलम्स और रोज मीनिंगफुल रहेंगे. दिस इज जस्ट अ रैंडम डेटा फ्रेम दैट वी हैव क्रिएटेड जस्ट फॉर एन एग्जांपल. ठीक है, तो एंड अगर हम लोग सीरीज की बात करें, तो सीरीज क्या रहेगा, एक कॉलम, दिस कॉलम, ये एक सीरीज रहेगी, ये एक सीरीज रहेगी, ये एक सीरीज रहेगी, ये एक सीरीज रहेगी. और हम लोग ऑब्वियसली पांडास में जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, हम उनके बारे में देखने वाले हैं. तो ये हो गया डेटा फ्रेम. ठीक है, अब एक काम करते हैं. कॉम्प्लेक्स डेटा फ्रेम बनाने से पहले, सबसे पहले एक हम लोग एक सीरीज बनाते हैं. ठीक है, उससे फिर हम लोग डेटा फ्रेम में डाइविंग करेंगे. सबसे पहले चीज, कोई भी लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करो. आ गया, इंपोर्ट पांडास एसपीडी. तो बेसिकली हम लोगों ने पांडास लाइब्रेरी पे इंपोर्ट कर दिया, एंड सेम थिंग पीडी की तरफ से नाम से सेव किया हम लोगों ने, बिकॉज इट्स अ नेमिंग कन्वेंशन, बहुत इजी टू यूज है. तो हम लोग अब जब भी कोई फंक्शन कॉल कर रहे होंगे, पीडी डॉट करके हम लोग कॉल करेंगे. लेट्स डू वन थिंग, एक सीरीज बनाते हैं. दिस इज इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज. तो दिस इज अ फंक्शन. पीडी डॉट सीरीज एक फंक्शन होता है, पांडास हमको प्रोवाइड करते हैं तो क्रिएट अ सीरीज. मैं काम करता हूँ, इसमें एक लिस्ट पास कर देते हैं. तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट है, उसको मैंने इस सीरीज के फंक्शन में कॉल कर पास कर दिया. और अब क्या होगा, ये एक सीरीज बन जाएगी. सिर्फ जस्ट प्रिंट एस. सीरीज क्या होता है, आपको इंडेक्सिंग और उसका एलिमेंट, इंडेक्स एलिमेंट, इंडेक्स एलिमेंट, इंडेक्स एलिमेंट, इंडेक्स एलिमेंट, कुछ इस फॉर्म में आपको डेटा देता है. मैं काम करता हूँ जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ इट, एक लिस्ट बनाते हैं, ये सेम लिस्ट. ठीक है,
लिस्ट मैंने बना ली। ठीक है, मैंने इसी लिस्ट को इस सीरीज फंक्शन में पास कर दिया। So if I print this type of this list, तो क्या होगा, एक लिस्ट है। तो ये लिस्ट किस टाइप की है, लिस्ट की। अब मैंने क्या किया, इसी लिस्ट को एक सीरीज डॉट सीरीज फंक्शन में पास कर दिया, यानी उसको एस में स्टोर करा दिया। अब अगर हम एस प्रिंट करेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, एंड इफ आई जस्ट प्रिंट द टाइप ऑफ दिस स्ट्रिंग, सॉरी सीरीज, तो एस वेरिएबल में, तो यू कैन सी pandas डॉट को डॉट सीरीज डॉट सीरीज। सो बेसिकली पांडास की सीरीज है, जैसे जब आप लोग एरे बना रहे थे, दैट वाज numpy एरे, दिस इज अ pandas सीरीज। सीरीज कुछ इस तरीके से रहता है। अब जो numpy में हम लोगों ने पढ़ा था, एक फंक्शन np डॉट अरेंज, उससे भी आप लोग ये चीज कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, एंड डेटा फ्रेम जब मैं बनाऊंगा, इट इज गोइंग टू बी प्लेइंग अराउंड numpy। ठीक है, numpy से बनाएंगे हम लोग डेटा फ्रेम, मतलब उसका फंक्शन यूज करके हम लोग डेटा निकालेंगे। तो काम करते हैं, आई जस्ट शो इट। ठीक है, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, उसका वेरिएबल हमने रख दिया df pd डॉट डेटा फ्रेम। डॉट डेटा फ्रेम में क्या होता है, दिस इज अनदर फंक्शन जो कि आपको डेटा फ्रेम बना के देता है। मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट क्रिएट एन एरे। काम करते हैं, जैसे हमने एरे बनाना सीखा था, राइट, np डॉट अरेंज, np डॉट अरेंज 0 से 20 ले लेते हैं, एंड डॉट रीशेप कर देंगे इसको हम लोग 5,4। सो इफ यू गाइज कॉन्सेंट्रेटेड, जब नंबर पढ़ रहे थे, क्या करेगा, 0 से 19 वैल्यूज देगा, एंड उसको 5,4 उसमें सेव करेगा। तो अगर मैं ये दिखाऊं आप लोग को, दिस इज हाउ ए लुक्स लाइक, दिस इज हाउ ए लुक्स लाइक। अब ये कुछ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये लुक्स समवॉट लाइक दिस। बट अभी भी आप देखो, रो नहीं है, कॉलम इंडेक्सेस नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, इसको डॉट डेटा फ्रेम में फंक्शन में पास कर देते हैं। तो अगर हम लोग ए का प्रिंट करें, टाइप टाइप ऑफ ए, तो हम लोग का ए क्या है, एक एनडीआर है। अब अगर हम लोग प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ डीएफ, जो हम लोग डॉट डेटा फ्रेम में पास कर दिया, इट इज नाउ अ डेटा फ्रेम। अब जो भी हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, वो अब इस ये डेटा फ्रेम पांडास के वो फंक्शनैलिटीज का यूज कर सकता है। कैसे कर सकता है हम लोग अभी दिखाते हैं। अब एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट प्रिंट डेटा फ्रेम एक बार को। इसमें देखोगे आप लोग कि जो ये है, ये दीज आर इंडेक्सेस, ये रो इंडेक्सेस होगा 0 1 2 3 4 जो इधर है, ये वाले, एंड ये वाले ऊपर वाले, दीज आर कॉलम इंडेक्सेस। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो हम लोग के इंडेक्सेस है, वो मैं खुद से लिखूं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इंडेक्स इक्वल्स टू, लिस्ट बनाता हूँ, और इट्स गिवन रैंडम नंबर्स, ये अल्फाबेट्स 5 है, राइट, सो ई तक ले जाते हैं। इसमें क्या हुआ, बेसिकली मैंने कॉलम इंडेक्सेस दे दिए, सॉरी रो इंडेक्सेस दे दिए। तो अब देखो, जहाँ पे 0 1 2 3 आता है, वहाँ पे ABCD आ रहा है। नाउ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग, सो बेसिकली ये पैरामीटर है इस फंक्शन का, इंडेक्स इक्वल्स टू ये एक लिस्ट पास कर दो, एंड यू गाइस विल हैव द इंडेक्सेस ओवर देयर। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, सेम ही लिस्ट उठा लेते हैं, कॉलम में भी हम लोग वही रख देंगे। सो बेसिकली कॉमा, कॉलम्स एक पैरामीटर आता है, कॉलम्स इक्वल्स टू, हम इसको पिक कर दें, और अब हम इसको अगर रन करें, अच्छा, ओके, हाँ, तो हम लोग के पास 4 ही कॉलम्स आ सकते हैं। सो प्रिंट करें, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम लोग कुछ भी रख सकते हैं इसमें, if I write my name, तबान, if I write HackSlash, if I write ML, if I write study jams, यहाँ प्रिंट df, सो यू कैन सी कॉलम के इंडेक्सेस को हम लोगों ने रीनेम कर दिया। दिस इज हाउ यू प्ले विद डेटा फ्रेम्स। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको वापस हम लोग नहीं, वैसे रह सकते हैं, रहने सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अब मुझे एक्सेस करना है कि जो भी हम लोग का रो 1 है, इस दिस रो ए, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 0 1 2 3। तो टू एक्सेस दिस, एक फंक्शन आता है डेटा फ्रेम में, df डॉट, मतलब जो हम लोगों ने डेटा फ्रेम बनाया, वो वेरिएबल नाम डॉट loc, और अगर मैं ए पास कर दूंगा, तो क्या होगा, तो बेसिकली ए जो रो है हम लोग की, उसमें सुभान के इंडेक्स पे 0 है, हैक्सैश के इंडेक्स पे 1 स्टोर्ड है, एमएल के इंडेक्स पे 2 स्टोर्ड है, स्टडी के इंडेक्स पे 3 स्टोर्ड है। दिस इज हाउ एक्सेसिंग वैल्यूज फ्रॉम
डेटा फ्रेमवर्क अगर मैं डील कर लेना चाहूँ, ठीक है। अब आई जस्ट डू वन थिंग, दिस अब मैंने आपको बताया था राइट, दिस इज वन सीरीज, ये सीरीज है सारी, है ना। इफ आई जस्ट टाइप, ये जो हम लोगों ने प्रिंट कराया, अगर हम टाइप प्रिंट करें, सी सीरीज है। तो बेसिकली जो आप एक एक्सेस कर रहे हो, एक रो को या एक कॉलम को, इट्स अ सीरीज, ठीक है। बेसिकली सीरीज इज वन डायमेंशनल एंड डेटा फ्रेम हम लोग को ये ऐसा हो गया लाइक एन एक्सेल शीट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इंडेक्सिंग की बात हुई थी, हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर हम लोग को इंडेक्सेस से एक्सेस करना है तो वी यूजिंग नॉट ILOC। अब इसमें क्या किया था, LOC, मतलब आप इंडेक्स से एक्सेस कर रहे हो, मतलब यूजिंग द इंडेक्सेस दैट यू हैव गिवन। अब ILOC क्या होता है, जो डिफॉल्ट इंडेक्सेस रहते हैं उसके, डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 1 2 3, और आपको उससे एक्सेस करना है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू। जो हम लोगों ने इंडेक्सिंग पढ़ी थी पहले एरेज में, वही चीज का यूज यहाँ पे मैं करूंगा। सो अगर ये देखो, तो क्या हुआ, सारे कॉलम सारे रोज प्रिंट हो गए, एंड फर्स्ट कॉलम से लेके एंड कॉलम तक सब प्रिंट हो गया। ये 0th कॉलम था राइट, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे प्रिंट हो गए। ये एंडिंग एंडिंग इंडेक्स हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया। तो यस, स्लाइसिंग आप लोग एक बार दोबारा से जाके इसको रिवाइज कर सकते हो स्लाइसिंग को। अब एक काम करते हैं, अब अगर मुझे खाली इसमें से जो वैल्यूज हैं वो निकालनी, इंस्टेड ऑफ हैकस्लैश ML स्टडी जैम्स, ये इंडेक्सेस हटा के देते हैं, नॉट वैल्यूज। डॉट वैल्यूज से क्या होगा, खाली जो वैल्यूज थी वो आ जाएंगी डायरेक्टली। एंड इफ आई रिमूव दिस, इफ आई रिमूव डॉट वैल्यूज, तो क्या होगा, पूरा डेटा फ्रेम हम लोग को विद इंडेक्सेस प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टडी अबाउट अनदर फंक्शन, वैल्यू काउंट्स, ठीक है। अभी वैल्यू काउंट्स फंक्शन का कैसे यूज होगा, अभी हम लोग दिखाते हैं। सो इफ आई एक्सेस दिस कॉलम df of सुभान, क्योंकि हम लोगों ने सुभान नाम से एक डेटा फ्रेम में कॉलम था, इफ आई एक्सेस दिस, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। अगर मैं यहीं पे डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स लिख दूं, वैल्यू काउंट्स अगर मैं लिख दूं, तो क्या होगा, अब ये क्या करता है, इफ यू गाइस जस्ट एक सेकंड में इसी सेल को मैं दिखाता हूँ। डीएफ ऑफ सुभान में क्या प्रिंट हुआ था, ए इंडेक्स पे 0 स्टोर्ड है, मतलब ये इंडेक्स, ये वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू। वैल्यू काउंट्स क्या करता है, ये जो जो वैल्यूज हैं कितना उसका काउंट है उसमें, ये वो दिखाता है। तो 0 वैल्यू हम लोग का एक बार आया, 4 एक बार आया, 8 एक बार आया, 12 एक बार आया, 16 एक बार आया। वैसे ही अगर आप लोग किसी और कॉलम के लिए ट्राई करो, so if I write ML, you can see उसमें 2 6 10 14 18 था, एंड सबका काउंट एक एक है। तो क्या करता है, जो भी वैल्यू है उसका कितना फ्रीक्वेंसी है, अगर आप लोगों ने बाय एनी चांस हैश मैप स्टडी किया होगा, तो क्या कर सकते हो आप हैश मैप यूज करके, जो नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर फ्रीक्वेंसी कर सकते हो राइट। दिस इज हाउ यू गाइस कैन डू दैट। नंबर कौन सा वैल्यू है और उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो आ रहा है, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट फंक्शन ये करके दिखाता है। नाउ लेट्स जस्ट डू वन थिंग, CSV फाइल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना डेटा इसमें रखेंगे और हम लोग उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू is I'm gonna import a CSV file over here, and उस CSV फाइल से हम लोग डेटा निकालेंगे, एंड हम वही CSV फाइल को अब यूज करके वो जो डेटा फ्रेम हम लोग को देगा हम लोग वो यूज करेंगे। ओके, ठीक है। नाउ इनफ डीलिंग विद रैंडम डेटास, अब हम लोग एक प्री डिफाइंड डेटा सेट, जो कि ऑलरेडी कोई में बी सम सॉर्ट ऑफ अ डेटा इंजीनियर और एनीवन जिसने बनाया हुआ डेटा सेट, हम लोग उस पर काम करते हैं। सो यूजुअली डेटा इज स्टोर्ड इन अ CSV फॉर्मेट और एक्सेल शीट फॉर्मेट, जहाँ पे ये जो डेटा फ्रेम होता है ना, ऑफ दिस सॉर्ट, the values are stored in a way that the values are separated as commas. तो CSV that stands for comma separated values। तो हम लोग ये काम करते हैं। So आप लोग के कोलैब में अगर ऐसा है, so you guys can click on this files option over here, click this button to upload the CSV file, and ये file if you guys want to practice on this, I'll make this available to you guys। तो मैंने डेटा सेट को अपने सेशन में लोड कर दिया है। Now I'm gonna open this over here। एक काम करते हैं, हम लोगों ने pandas को import किया हुआ है राइट। So we're gonna use this function of pandas which is read CSV। So what I'm gonna do is df is equals to, I'm gonna create a data frame pd dot read underscore CSV, this is a function, and जो डेटा इसका सेट फाइल का नाम है which is
qt.csv। सो ये एक डेटा सेट है हमारे पास, तो हम लोग इसको रीड सीएसवी से क्या करेंगे, जो भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है राइट, वो एक डेटा फ्रेम के ऐसे फॉर्मेट में हमको दे देगा। सो टू हैव अ लुक एट दैट, एक काम करते हैं, आई एम गोना टेल यू अबाउट टू फंक्शंस जो भी इंपॉर्टेंट है। वन इज हेड एंड दी वन इज टेल। यू गाइस मस्ट बी अवेयर ये कमेंट्स होते हैं। सो एक काम करते हैं, पहले हेड पे काम करते हैं। df.head, let's see what df.head gives us, and just to differentiate df.tail, देखो, so what happens is df.tail में क्या होता है, df.head में क्या होता है, head में क्या होता है, so when you have a data set right and you want to just have a overview of it, so when you get in this head ना, so top 5 values of that data frame ऊपर से वो दिखा देगा, and tail में भी यही होगा, जो नीचे से bottom 5 values है वो आपको दिखा देगा। so now if I just so default इसका value 5 रहता है ना, if I do 10 ये top 10 values दिखाएगा मुझे, so you can see, but for simplicity 5 ही काफी रहते हैं, so you can just leave it as it is। अगर कोई argument नहीं दोगे it will give you 5। so this is our data set, this is how it looks like। इसमें wine के कुछ कुछ qualities हैं, fixed acidity, volatile acidity, pH, sulfates, alcohol, quality, ID and all that। क्या है क्यों है, we're not really concerned with that। I'm gonna demonstrate few functions of pandas जो हम लोग यूज करते हैं। अब एक फंक्शन जो हमने शायद नंबर में पढ़ा था वो शेप, सेम गोज ओवर हियर। इसमें शेप में क्या दिखाएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, तो बेसिकली 1143 रोज एंड 13 कॉलम्स। ये कॉलम्स जो होते हैं ना ये फीचर्स होते हैं। when you get into machine learning ना, you will know that these columns they stand for something, these are features। और ये जो होते हैं ये हम लोग के डेटा पॉइंट्स होते हैं एज इन रोज। ओके, अब एक काम करते हैं, जस्ट टू हैव अ गुड ओवरव्यू ऑफ द डेटा सेट, देयर आर फ्यू फंक्शंस दैट वी यूजुअली यूज। सो आई एम गोना यूज df.info। अब df.info से क्या होता है, it will just give you an overview in a way कि कॉलम में कितने नॉर्मल वैल्यूज हैं, कितने फ्लोट है, क्या है फ्लोट है, इंट है, द नंबर ऑफ कॉलम्स, बेसिक डिटेल्स, ठीक है। और एक होता है df.describe। नाउ व्हाट डज df.describe डज, df.describe में क्या होता है, बेसिक कि हमारे पास एक जो भी कॉलम है उसमें कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, क्या उसका मीन है, क्या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या मीन क्या मिन है, क्या 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल और एक मैक्सिमम वैल्यू। सो व्हेन यू गेट इनटू एक्सट्रीम डेटा एनालिसिस दीज पॉइंट्स विल रियली बी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस, बट फॉर नाउ जस्ट समझ लो कि हाँ डिस्क्राइब फंक्शन से ये इसकी जो होता है वो सब दिखा देता है। एनीवेज नाउ लेट्स मूव ऑन। एक और हम लोग इसमें फंक्शन देख सकते हैं which is going to be, let me think कि हम लोग और क्या इसमें इसके functions use कर सकते हैं। Okay, df dot is null dot sum। now what does this function do, हमारे data set में कितने null values हैं column wise, this is what it gives, is null dot sum। df dot is null अगर आप करोगे ना, सो आई डोंट थिंक, या इसमें क्या होता है बूलियन रिटर्न करेगा कि हाँ ये नल है, नल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, फॉल्स है। सो व्हाट्स गोना हैपन इज दैट व्हेन यू प्रेस इन द सम फंक्शन ना, व्हेन यू प्रेस इन द सम फंक्शन एंड यू जस्ट क्लिक ऑन डॉट सम, तो ये क्या होता है आपको बस दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पे ये एक्चुअल में ये चीज होल्ड करती है, ठीक है। सो इफ आई गो फॉर सम अदर फंक्शन, अब आप देखो दिस इज व्हाट you know you can say data analysis का ये छोटा छोटा part है। so so this is one way you guys can have a look over this। अब मैं एक काम करता हूँ now, value counts function हमने पढ़ा था right, so this is what happens when you're working with a data set ना, जो value counts का होता है ना that comes in handy। so I'll take one column chlorides। so if I take this column chlorides, तो अगर मैं जाऊँ df of chlorides dot value underscore counts, सॉरी हाँ वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स था ना, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, इसमें दिखा देगा कि 0.08048 ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्लोराइड का वैल्यू ये है। दिस कुड मीन एनीथिंग, दिस इज अ मीनिंगफुल डेटा। तो इसमें क्या होता है ना कि यू कैन से
when it's a meaningful data set and you're working with a good model, तुमको इन चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. So this is how it works, and we can figure out few more things. Yeah, अगर फॉर एग्जांपल तुम लोग को खाली कॉलम्स देखना है कि कौन कौन से कॉलम्स है इसमें, so we just write div dot columns. तो इसमें ये कॉलम्स एज अ लिस्ट तुमको रिटर्न हो जाता है कि हाँ ये कॉलम्स हैं इस डेटा सेट में. There is one more function that can say df of let's say ph. ठीक है, ph में ph कॉलम है. अरे यार, कैपिटल p, dot can say unique. दिस फंक्शन ये क्या करता है, ph में जो जो भी तुम्हारे यूनिक वैल्यूज है ना वो रिटर्न कर देगा. इस कॉलम में जो जो यूनिक वैल्यूज हैं इट विल रिटर्न दैट. एंड आई थिंक वी हैव लॉस्ट इंटरनेट कनेक्शन. एक सेकंड देना, जस्ट आई कनेक्ट एंड गेट बैक. व्हेन यू लूज इंटरनेट कनेक्शन ये रन टाइम डिस्कनेक्ट हो जाता है, सो यू sort of want to run it again. So basically when you lose internet connection यहाँ पे जो connect जो रन टाइम कनेक्टेड रहता है it disconnects and you have to connect it again. So I am running these. Yeah, so we've seen this function not unique. Okay, let's move on to some other function. So okay, let's do one thing. Let's talk about duplicates. ठीक है, डेटा सेट में कभी कभी ऐसा होता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाती हैं एंड दैट्स अननेसेसरी, राइट. सो हम लोग क्या करेंगे, df डॉट डुप्लीकेटेड. जस्ट वन सेकेंड. ठीक है, df डॉट डुप्लीकेटेड हम लोग अभी रन करेंगे. राइट, सो ये बुलियन में दे रहा है विच मेक्स नो सेंस. तो एक काम करते हैं हम लोग, डेटा फ्रेम में से वो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होता है, यू कैन एक्सट्रैक्ट दोस वैल्यूज, है ना. लेट्स सी. एम्प्टी मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी रो नहीं है जहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट है. एल्स अगर होता वो रोज आपको यहाँ पे दिख जाते. सो एंड हाउ टू डील विद डुप्लीकेट्स, ड्रॉप कर दो, सिंपल. You guys don't need duplicate values in your data set. So you guys can use this function give dot drop underscore duplicates and ऐसे कर दो. And you, after dropping it, you assign that back to the data frame. तुमने ड्रॉप कर दिया, अब ड्रॉप करके जो बचेगा उसको तुम ऑब्वियसली डेटा फ्रेम में वापस रखोगे ना. दिस इज हाउ यू कैन डू दैट, बट अभी इसमें है नहीं डुप्लीकेट, सो देयर इज नो सेंस ऑफ रनिंग दिस. इफ यू गाइस फाइंड अ डेटा सेट जिसमें ऐसे हो, you can do that. Now another function that I want to talk about is df.core. Okay, this is correlation. तो इसमें क्या होता है, okay, this must be a little difficult, a bit weird. क्या है ये correlation? You guys must be aware of correlation कि एक feature fixed acidity volatile acidity से कितना related है. It's minus 0 point something. ठीक है, negative value indicates कि वो inversely proportional है. If it's a positive like this कि correctly proportional है. If it's 1 डायरेक्टली कोरिलेटेड, भाई एकदम कोरिलेशन. जितना वो बढ़ेगा उतना वो रहेगा. एंड दिस इज यूजुअली यूज्ड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. ठीक है, सो हम लोग जब मैटप्लॉटलिब और सीबॉन इन सब की बात करेंगे तब मैं कोरिलेशन प्लॉट बना के दिखाऊंगा. तो यू कैन सी इस टाइम की कौन सा फीचर एक दूसरे से कितना ज्यादा रिलेटेड है. इफ इट्स वेरी मिनिमली रिलेटेड ना, हम उन दो में से एक फीचर को भी रख सकते हैं क्योंकि दो फीचर्स एकदम ही कोरिलेटेड है, मतलब दे आर वेरी मच सिमिलर, राइट. सो व्हाई डू वी नीड दैट, सो वी कैन ड्रॉप दैट. सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग दैट. एंड आई थिंक पांडास में और भी फंक्शंस होते हैं, बट आई डोंट थिंक देयर इज मच मोर वी नीड, as in talking about uh, dealing with data. Else you have some functions like df.fill_na. Okay, df.fill_na, but you don't have any null values in this data set. So there's no point in filling null values. क्या होता है when you have null values you just cannot drop it, हम fill कर सकते हो उसको. So you can use this df.fill_na. You guys can read more documentations, तुम लोग को और इसके बारे में समझ आएगा. It's always good to go through documentations of functions and pandas, numpy. Documentations के through जाओगे you will learn more and more.
एंड एक होता है इफ यू वांट टू ड्रॉप नल वैल्यूज यू कैन गो df डॉट ड्रॉप na x इज इक्वल्स टू 0 मतलब रोज ड्रॉप करेगा, x इज इक्वल्स टू 1 कर दो कॉलम ड्रॉप कर देगा. So you guys can experiment with this first of all. थोड़े बहुत functions में से लिख देता हूँ. You guys can experiment this, but उन data set में जहाँ पे you have null values. ठीक है. Okay, df dot drop underscore duplicate. ठीक है. You guys can have maybe uh, what are some other functions? Maybe you can use this one. Wait, I'll go for this. df of 1 second. df of ph dot values. तो क्या होगा? df ph में जो जो values हैं वो रिटर्न कर देगा. बहुत बड़ा है. दिस दिस एंटायर array contains lots of values. ये बीच में डॉट 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 इसलिए आ गया. यहाँ पे you have those code. तो I think that's pretty much it for pandas I guess. बाकी जो रहेगा हम लोग अभी मैटप्लॉटलिब के बारे में बात करेंगे इन अ व्हाइल. और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो ये कोरिलेशन प्लॉट है ना, व्हेन आई विल प्लॉट दिस कोरिलेशन प्लॉट यू गाइस विल देन रियलाइज दैट हाउ ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशंस कैन गेट. Right. And one more thing that I want to add is, for example, जो null values की हम लोग बात कर रहे थे. What if you want to create a data जिसमें खुद एक null value? How you can do that? So I'll create a list. Not here. Here. 1 second. I want to create a list. Okay. So I'll do is create this. NumPy में सीखा था हम लोगों ने कि कैसे बना रहे थे. So what I'm gonna do, I'm gonna put np dot 1 second np dot nan. I think this should work. So if I print list, if I print this list, you guys will see कि हाँ एक nan value वहाँ पे आ जाती है. मतलब not a number, that's just irrelevant. So अगर यहाँ पे कहीं पे भी null होता, assuming कि कैसे आए, you can definitely go with np.nan. And NumPy has thousands of other functions. You guys will have to explore some of them on your own if you're keen on learning NumPy and pandas. So for now, we've wrapped up NumPy and pandas. ठीक है? We've got a good overview over these two libraries. Now we will be moving on towards the visualization libraries. I'll be focusing more on matplotlib and एक दो functions हम लोग seaborn के भी देखेंगे. These are the two very good prominent libraries that we as we work with data, we use these libraries to get an insight. Few insights चाहिए, you can make business decisions, and this is just too much, to deal with. So हम लोग अभी we will be moving on towards matplotlib and seaborn. तो हम लोग डेफिनेटली डेटा विजुअलाइजेशन करना सीखेंगे एंड वी विल बी यूजिंग द सेम डेटा सेट. इसी डेटा सेट पे हम लोग काम करेंगे. एंड इट्स वेरी गुड व्हेन यू वांट टू लर्न अबाउट डेटा. ना व्हाट यू डू इज यू पिक अ डेटा सेट एंड उस पे फिर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो. इफ यू डोंट नो फंक्शंस यू कैन डेफिनेटली गूगल देम. ये कुछ कुछ इतने ऐसे फंक्शंस होते हैं, दीज आर वेरी 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 कॉमन, राइट? बट देयर आर मेनी मोर वहाँ पे तुम खुद एक्सपेरिमेंट करके खुद से सीख सकते हो. So for now, we will be moving on towards data visualization part now. Yeah, so I've imported Matplotlib library, so Matplotlib library and PyPlot module, and I've given the name as PLT. So throughout the code, I'll be using PLT now. So let's do one thing. I'll first of all start with a scatter plot. ठीक है? फिर बाद दिखा देते हैं scatter plot होता कैसा है. So what I'll do first is I'll first of all create uh, an array, one-dimensional array. ठीक है? np dot arrange function, right? So you guys must be aware कि np dot arrange function हम लोगों ने use किया था. So I'm using creating x and y के values because when you're plotting a graph, right, you need values of x and y. तो जैसे हम लोग x के values हम लोगों ने लिए थे and y के values हम लोग ले ले रहे हैं. So what I'm gonna do is I'm gonna use plt dot scatter x comma y. ठीक है? So let's see क्या आता है result. Before that, just for clarity, let me just print x and let me print y. So you guys will have an idea कि क्या होता है. So you can see कि x के value 0 से 9, ठीक है, y के value 11 से 20. So now I have to plot this. ये आ गया हम लोग का स्कैटर. ठीक है, 0 is mapped to 11, sorry, yeah, 1 is mapped to 12. ऐसे कर करके you have all your values. ठीक है, this is a scatter plot. I hope that's pretty much understandable to everyone. ये scatter function है, इसमें तुम्हारा x argument जाएगा and y argument जाएगा. Okay, now
इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इफ आई वांट टू कलर दिस ग्राफ, मतलब जो स्टार्टर्स हैं, सो अगर मैं ग्रीन करना चाहूँ, हम सी इज इक्वल्स टू जी। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग कलर को जी ले लेंगे। ओके, सो हम लोग का जो स्कैटर प्लॉट है उसके कलर्स ग्रीन हो जाएंगे। ऑलराइट, सो जो डॉट्स आ रहे थे, इट्स नाउ ग्रीन। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू पुट इन सम एक्स लेबल एंड वाई लेबल, ठीक है, कि हम लोग का एक्स क्या चीज है, वाई क्या चीज है, एंड हम लोग का ग्राफ को अगर हम लोग को एक टाइटल देना है, सो व्हाट आई एम गोना डू, सबसे पहले आई एम गोना गिव इट अ टाइटल। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट मी से your x title as x values. Okay, so if I'm assuming that जो y axis पर में अगर मैं उसको just एक title दे दूं that it's y values, so you guys can have a look कि इसमें the graph title, the axis के titles जो होंगे वो change हो जाएंगे। So yeah, okay, yeah, it's label, it's not y label. I mean, instead of title, it's x label and y label. तो तुम देख सकते हो कि वाई एक्सिस पे एक लेबल लग गया विच इज वाई वैल्यूज, एंड इसके जो एक्सिस है उस पे एक लेबल लग गया दैट इज एक्स वैल्यूज। ऑलराइट, सो दीज वर जस्ट द लेबल्स जो तुम एक्स और वाई के एक्सिस को दे सकते हो। नाउ व्हाट इफ आई वांट टू गिव द टाइटल टू अ ग्राफ, सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना यूज plt डॉट टाइटल एंड आई एम गोना से स्कैटर प्लॉट। ओके, सो जो भी हम लोग का ग्राफ है उसका टाइटल हो जाएगा स्कैटर प्लॉट। ओके, यू कैन सी जो हम लोग का एक ग्राफ का बेसिकली एक टाइटल रहता है, इफ यू वांट टू गिव इट अ हेडिंग इट कुड बी स्कैटर प्लॉट। सो दीज आर द थ्री फंक्शंस जो बहुत कभी कभी काम आते हैं जस्ट फॉर एनोटेशन पर्पसेस, कि अगर तुम्हें एक्स के एक्सिस को लेबल देना है, इट्स एक्स लेबल, वाई के एक्सिस को वाई एक्सिस को लेबल देना, दैट्स वाई लेबल, ग्राफ के कंप्लीट ग्राफ को टाइटल देना, दैट्स plt डॉट टाइटल। ना व्हाट इफ मुझे ये जो क्या बोलते हैं ये ग्राफ है, इफ आई नीड द png image of this, मुझे इसको सेव करना है, so what I'm going to do, I'm going to say plt dot save fig and I'm going to say studyjam dot studyjam1 dot png. So when I run this figure should get saved as png format over here यहाँ पे। So when I'm saving this, the save figure actually takes a bit of time। देखो ये तो रन हो गया in a while, यहाँ पे सेव हो जाएगा। yes, so you can see studyjam1.png यहाँ पे सेव हो चुका है। you guys can open this and check it out। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ, सी you can see as of image ये हम लोग का सेव हो चुका है, and you can now save this to your local PC as well। ठीक है, अब एक काम करते हैं, for the same thing what I'm gonna do is I'm gonna like I'm going to use the same code। ठीक है, what I'm gonna do, scatter की जगह मैं plot डाल दूंगा एंड मैं कलर को रेड। ठीक है, सो हम लोग का जो प्लॉट बन जाएगा, so it won't be scatter plot। हम करते हैं इसको हटा देते हैं, I don't want to take much time, so yeah, अगर मैं इसको लाइन प्लॉट कर देता हूँ, so instead of scatter if I use plt dot plot, खाली अगर मैं plt dot plot यूज करता हूँ, it will give you a line plot। yeah? तो एक स्ट्रेट लाइन जो भी उस वैल्यूज के हिसाब से था, that will get plotted। okay, now इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नाउ इफ आई जस्ट वांट कि रेड तो रहे ही रहे, बट आई वांट कि वो जो लाइंस है, जहाँ पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पे वो मार्क हो जाए अच्छे से, सो आई एम गोना इंक्लूड अ स्टार। ओके, ओके, लेट मी सी, आई थिंक, लेट मी सी, ओके, एनीवेज ऐसा नहीं करते हैं, लेट्स ट्राई वन मोर थिंग इंस्टेड। हम करते हैं लाइन स्टाइल को चेंज कर देते हैं, लाइन स्टाइल को कर देते हैं डैश। या सो जो हम लोग का लाइन है जो है वो डैश्ड आ जाएगा, won't be a bold line, and you can change the line styles to your own preferences। इसकी बहुत लिस्ट आती है, बहुत लंबी लिस्ट आती है, you can change it to anything you want। You guys can check that out। अभी फिलहाल के लिए डैश्ड रखते हैं एंड ओके, ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सब प्लॉट्स। ठीक है, या ओके, बिफोर सब प्लॉट्स एक और चीज कर लेते हैं। इफ आई हैव फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, एक और ग्राफ बनाते हैं।
ठीक है। और y को इस बार मैं वैल्यूज नहीं दे रहा, I'm just gonna say y is equals to 3x plus 5, and if I say plt dot plot x comma y, so अब क्या होगा, see I have given this equation in the form of y is equal to mx plus c, ठीक है। तो मैंने इंस्टेड ऑफ गिविंग इट वैल्यूज ऑन माय ओन, मैंने क्या किया कि वो अपने आप हर एक x की वैल्यू पे y का वैल्यू ले ले रहा है एंड प्लॉटिंग इट। सो दिस इज वन वे, अगेन यू कैन प्लॉट लाइन प्लॉट्स। ओके, अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई प्लॉटिंग साइन। ओके, लेट्स ट्राई प्लॉटिंग साइन। फिर काम करते हैं, x इज इक्वल्स टू np डॉट रेंज 0 से 4 तक लेते हैं, 20 तक ले लेते हैं। एंड अरेंज फंक्शन में एक थर्ड पैरामीटर भी होता है विच इज स्किप, कि आप कितना वैल्यू को स्किप करोगे। सो इफ आई जस्ट शो दिस, इफ आई से x, देखो कैसे कैसे आएगा, 0, 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे कर करके सारी वैल्यूज आएंगी तुम्हारी। इफ आई जस्ट रिमूव दिस, खाली x के यू नो एक एक के इंटरवल पे आएगा। सो लेट्स से मैं अगर 0.1 के इंटरवल पे लेता हूँ, एंड इफ आई से y इज इक्वल्स टू, अब हमको साइन का बनाना है। सो numpy में एक फंक्शन होता है विच इज np डॉट साइन। तो अगर मैं np डॉट साइन करूँ एंड इफ आई पास द वैल्यूज ऑफ x, एंड इफ आई देन प्लॉट दिस x comma y, x comma y, सो क्या होगा, एक साइन का प्लॉट आ जाएगा। दिस इज अ साइन प्लॉट फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। इसको तुम आई गेस कॉस के लिए भी कर सकते हो। लेट्स ट्राई फॉर कॉस, इसको सेम कोड को लेते हैं एंड लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू np डॉट कॉस, np डॉट कॉस ऑफ x। अगर देखो, सो दिस इज अ cos का ग्राफ फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x। नाउ आई थिंक हम लोग आ जाते हैं, ओके अगेन सब प्लॉट पे मैं थोड़ा देर से आता हूँ। लेट्स ट्राई प्लॉटिंग बार प्लॉट्स। ठीक है, तो मैं x की कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2, 5, 6। okay, if I take y के values to be maybe 11, 16, 14, anything, yeah, and if I say plt dot bar x comma y, और मैं कलर दे देता हूँ इसको, कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन। तो ये आ गया हम लोग का बार प्लॉट, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ अगर मुझे इसी में प्लॉट करना है, so what I'm going to do is I'm going to create another bar, plt dot bar x comma y, and मैं कलर चेंज कर दूंगा रेड, ठीक है। सो I'm gonna use different set of attributes, different set of x and y के values। so x2 को हम लोग ले लेते हैं मे बी 20, y2 को ले लेते हैं anything, you guys can play around with this। matplotlib is all about having fun with data। so कुछ इस तरह का ग्राफ तुम्हारा बन के आ जाएगा and I've changed the color। so एक ही फिगर में you have two bar plots plotted, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट्स प्लॉट अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में y के वैल्यूज होते हैं, मतलब नहीं, इसमें काम करते हैं जस्ट, हिस्टोग्राम में एक ही पैरामीटर जाएगा। सो np डॉट array, एक array बना लेते हैं 22, and the reason I'm going fast is because this is just for playing around honestly। मतलब अगर आप matplotlib यूज करते हो, you guys if you're learning, you guys will have fun while you know learning matplotlib। तो ये एक हिस्टोग्राम बन गया। सो इट्स जस्ट अबाउट चेंजिंग दीज फंक्शंस एंड प्लेइंग अराउंड विद देम। हिस्ट हो गया, बार हो गया, प्लॉट हो गया, स्कैटर हो गया, ठीक है। अब अब वी हैड डेल्ट विद द डेटा, राइट। तो हम लोगों ने, इफ यू गाइस रिमेंबर, एक हम लोगों ने कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाला था, दिस वन। आई हैड टोल्ड यू गाइस दैट मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊंगा। सो फॉर प्लॉटिंग दिस कोरिलेशन मैट्रिक्स, एक दूसरा लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा व्हिच इज इंपोर्ट cbon एज एसएनएस। एंड एक काम करते हैं, लेट्स यूज दिस फंक्शन heat map होता है एक sns dot heat map, and if I pass df dot correlation इसमें, so it should give us a heat map जो कि correlation matrix से बना हुआ है, and this takes a bit of time to get executed। तो उस चीज का वेट कर लेते हैं। या so this is how it's looking। although समझ नहीं आ रहा होगा, so एक काम करते हैं, इसको annotation दे देते हैं। so you have this parameter called are not equals to true। so अगर इसको अच्छा annotate नहीं होता है, क्या होता है, okay not over here, sorry, it's going to go over here outside the main parenthesis, ठीक है। now it's very clumsy। अब इसको क्या करते हैं, जो matplotlib होता है, it gives you a function to resize this, ठीक है। तो plt dot figure, and fix size will fix it as maybe 10 or 16,
10 क्रॉस 6, ठीक है। सो अब इसको ट्राई करके देखते हैं। इट्स फिक्स साइज। So now it's very much more visible. So now you can see कि किन किन फीचर्स तक किससे कितना कोरिलेशन है. This is why we use correlation plot to get to know about कौन से फीचर्स किससे कितना related है. So you guys can infer this from this plot instead of this. And this is way much more convenient, right? This is the whole point of visualization, so that you guys can make जो भी डेटा है तुम्हारे पास उसको अगर properly visualize करना, you guys can get hold of these data visualization techniques. अब एक काम करते हैं, लेट्स get around and play with more and more you know more and more plots. तो एक काम करते हैं, एक हिस्ट प्लॉट बनाते हैं. ओके. सो मैं फॉर एग्जांपल जो इस डेटा फ्रेम में जो अल्कोहल का कॉलम था, so I'll show that to you guys. This is how the alcohol column of the data frame looks like. इसको प्लॉट करते हैं. So I'm going to use the hist plot जो कि इसमें रहता है. So एक काम करते हैं, let's pass this as an argument and his plot हम लोग का प्लॉट हो जाएगा. Let's see कैसा दिखता है. This is how the histogram looks like. कि क्या उसका alcohol and कितना उसका count है and everything. You guys can infer that. And let's try another thing. Hmm, ठीक है. एक okay, we can do one more thing. So let's go for this df of quality. ठीक है. हमारे पास जो भी क्वालिटी है वो हम लोग कैसे सिंटेक्स में आ गया. अब इसका अगर हम लोग एक जो हम लोग ने डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स फंक्शन पढ़ा था, if I use this, so these are the values. अब मैं इसको अगर मैं डायरेक्ट डॉट प्लॉट लिख दूं तो लेट्स सी क्या होता है. दिस इज हाउ द प्लॉट लुक्स लाइक. अब एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लॉट फंक्शन में काइंड चेंज कर देते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो ये हम लोग का एक बार प्लॉट बन गया. सो द डॉट प्लॉट फंक्शन, यू कैन चेंज द काइंड ऑफ द प्लॉट फंक्शन एंड इसको तुम बार में कन्वर्ट कर सकते हो. सो नाउ यू कैन सी जो हम लोग का ये वाला वैल्यू था, इफ आई जस्ट टेक दिस, जो हम लोग इनिशियली नमपाई जब पांडास जब पढ़ रहे थे, जब हम लोग देखे थे. सो यू गाइस कैन सी कि जो हम लोग का 5 है उसका वैल्यू कितना है, 483. सो ये डायरेक्ट प्लॉट हो गया. यू गाइस डिडंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. डायरेक्ट एक ही लाइन में यू गॉट द वैल्यूज एज वेल एंड कुछ तुमको प्लॉट भी कर दिया. इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस, अगर तुम्हारे पास ये होगा, दिस इज वे मच मोर इजियर टू इंटरप्रेट ना. तुमको इससे ज्यादा आसानी से पता चल रहा है. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअलाइजेशन. So I think that's pretty much it. अब हाँ, we had talked about subplots. So subplots की अब बात कर लेते हैं. Let's talk about subplots. So एक बार let's just, and this is going to be the last topic of this second session. Subplots. अब subplots क्या होते हैं? Basically ये एक plot है, right? Now what if I want कि एक ही जगह पे मैं 4 या कितने भी प्लॉट्स को एक साथ प्लॉट कर पाऊँ. सो लेट्स डू दैट. अब इसमें जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, इट विल गिव यू यू कैन से फंक्शन plt.subplot. अब इसमें क्या करना होता है, नाउ जस्ट आई गिव यू अ सिनेरियो. ठीक है, कि मुझे 4 प्लॉट्स बनाने हैं एक ही प्लॉट में. सो आई वांट वन प्लॉट. बेसिकली मुझे 4 प्लॉट चाहिए, 4 अलग कलर में. ओके. अब मैं क्या करूँगा, सो मैंने x की वैल्यूज ले रखी है, राइट. सो लेट मी जस्ट चेक कि x की वैल्यूज है क्या अभी. ओके, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको. लेट्स चेंज द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x को ले लेते हैं p डॉट arrange 0, 10, y is equals to np dot arrange 11, 21, जो हम लोग का इनिशियल एग्जांपल था वही ले लेते हैं. अब मैं क्या करता हूँ, आई वांट टू प्लॉट 4 सब प्लॉट्स. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, अब 4 सब प्लॉट्स हैं. अब मैं चाहता हूँ कि वो एक ऐसे रहें कि यू हैव अ ग्रिड. जैसे एक प्लॉट यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए एंड एक यहाँ पे आ जाए. सो दिस इज बेसिकली 2 क्रॉस 2 ना. अगर तुम इसको वैसे विजुअलाइज करो, दैट इज 2 क्रॉस 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, आई एम गोना यूज दिस फंक्शन दैट इज plt.subplots एंड आई एम गोना कॉपी पेस्ट दिस सेम लाइन 4 टाइम्स. ओके, 1 सेकेंड, रन नहीं करना था इसको. ठीक है. अरे 1 सेकेंड.
दिस इज गोइंग टू बी, अब देखो, 2 क्रॉस 2 मतलब तुम्हारे 2 रोज और 2 कॉलम्स हो गए एक तरीके से, इफ यू विजुलाइज दैट। ये हम लोग का फर्स्ट प्लॉट हो गया, ये हम लोग का सेकंड प्लॉट हो गया, ये हम लोग का थर्ड प्लॉट हो गया, और ये हम लोग का फोर्थ प्लॉट हो गया। बेसिकली दीज आर द पोजीशंस, और ये तुम लोग का ये बताते हैं कि तुम्हारे मेन प्लॉट में कितने तुम्हारे 2 क्रॉस मतलब कितने तुम्हारे सब प्लॉट्स के जो पोजीशंस है वो है। अब मैं प्लॉट करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। अब एक काम करते हैं, या लेट्स जस्ट टेक दिस एज एन एग्जांपल। ओके, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल फर्स्ट। ओके, ठीक है, 4 लाइन प्लॉट्स बनाते हैं। ओके, plt डॉट प्लॉट कॉमा वाई, एंड जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं चारों को जगह सेम रखता हूँ, ठीक है, एंड मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। ओके, plt डॉट सब प्लॉट, ओके इट्स सब प्लॉट, इट्स नॉट सब प्लॉट्स, एक सेकेंड, या तो यू कैन सी कि 4 हम लोग के पास सब प्लॉट्स आ चुके हैं। आई डोंट नो व्हाई ये क्यों नहीं आ रहा है, लेट्स सी। अच्छा, आई एम मिसिंग वन सेकेंड, जस्ट टेक दिस एंड पेस्ट इट अगेन। तुम लोग का दिख रहा है कि 4 सब प्लॉट्स हम लोग के पास आ गए हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें क्या डिफरेंट कर सकते हैं हम लोग, सो ठीक है, सबका कलर चेंज कर देते हैं, दैट विल मेक मोर सेंस। इसका रेड कर देते हैं, इसका ग्रीन कर देते हैं, इसका मे बी हम लोग येलो कर देते हैं, एंड इसका हम लोग वी कैन गो फॉर ब्लू, ठीक है। इफ आई नाउ रन दिस, am I missing a column, comma, yeah, so you can see अब ये हो चुका है। नाउ दिस वाज अ वेरी बेसिक एग्जांपल। अब इसमें यू गाइस कैन एक्सपेरिमेंट कि तुम लोग चारों में अलग अलग वैल्यूज ले लो, अलग अलग टाइप के प्लॉट्स तुम प्लॉट कर दो। इफ यू वांट कि तुम यहाँ पे प्लॉट की जगह स्कैटर कर दो, यहाँ पाई कर दो, यहाँ बार कर दो, यहाँ just keep it as it is, change the values of x and y. अब now I'm giving this as an exercise to you guys, सब प्लॉट्स ऐसे ही इसका मेन स्ट्रक्चर रखो, चेंज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ऑन एवरी प्लॉट, ठीक है। एंड प्लॉट, तुम प्लॉट की जगह यू गाइस कैन यूज बार प्लॉट और मे बी स्कैटर प्लॉट, दैट्स अप टू यू गाइस। इस चीज का एक्सपेरिमेंट करो, एंड you guys will find that visualizations are actually something that you guys can play around with. So I think that's pretty much it for this matplotlib session as well. तो हम लोग का जो session 2 है that has come to an end. um, हम लोग ने स्टार्ट किया था बाय लर्निंग मैटप्लॉटलिब, सॉरी numpy, एंड देन वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स pandas। हम लोग ने उसके बेसिक फंक्शंस पढ़े, एंड देन वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स हैंडलिंग अ डेटा सेट ऑन आवर ओन, and we dealt with lots and lots of functions of pandas, and then we came towards matplotlib, and you can see कि सब कुछ interrelated है। मैंने matplotlib में numpy का यूज किया, राइट, मैंने pandas में numpy का यूज किया। You guys can play around with these visualizations a lot. I will be sharing a notebook का link and maybe the CSV file as well, and whatever resources are necessary, ये चीज मैं शेयर कर दूंगा। एंड जो फर्स्ट सेशन था, यू गाइस लर्नड अबाउट बेसिक्स ऑफ पाइथन, सेकंड में ये हम लोग के 3 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है, इट विल बी ऑफ लीनियर रिग्रेशन, वहां से हम लोग का जो मशीन लर्निंग का जर्नी है विल बी स्टार्टिंग। So I think that's pretty much it for this session, guys. I hope it was something that you guys found informative. So I hope that's, yeah, that's pretty much it. So let's wrap up. Yeah, take care, everyone. Good night.